Hello everyone, welcome back to the Mark Dasak. So, as you people are aware that we are doing the quick revision series. In this series, we are already done with the international conventions as well as in report and indexes. So today we are doing the second portion of second episode of our ancient history, or the portion of the history that we are revising for our upcoming examination. So in yesterday lecture, we are done with the Indus Valley civilizations, prehistory, and then after the Vedic civilizations, Vedic age, we are done with that. Today we are moving toward the next set of the terms and conditions. This series will be helpful for you, as you can, if you are just revising, then you can follow this series blindly. This will definitely give you an edge over in your examination. So let's discuss with the Buddhism. So in Buddhism, I know that it is very important and crucial part of your upcoming examination. So I included everything that is required from the Buddhism perspective. So without wasting any further time, let's move towards the Buddhism. So Buddhism basically, you can remember Buddhism के थ्री ज्वेल्स है ना, थ्री ज्वेल्स है. Okay. These three jewels are the Buddha, Dhamma and Sangha. बुद्धा बेसिकली इनलाइटेंड वंस हो गया, देन धम्मा हो गया, फिर उनकी डॉक्ट्राइन्स होगी, फिर संघ संघ हो गया, कम्यून हो गया, जिनका वो संघ होता है ना, संघ इज ए ग्रुप. ओके. धम्मा इज बेसिकली डॉक्ट्रिन एंड रूल्स, एंड बुद्धा इज द इनलाइटेंड वन. ओके. देन आफ्टर फोर नोबल ट्रूथ्स थे ये बुद्धिज्म के. वो कौन कौन से थे? यू कैन रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज यू मे डायरेक्टली find any questions in from the this portion, that like which of the following are not part of the four noble truth of the Buddhism. So this type of question can be asked in your upcoming examination, as it is repeated in the previous year papers. So you have to remember that. Okay. Four noble truths: that first is the dukha, that is the life is full of sorrow. Then second is the cause of sorrow is desire, that is the samudaya. Third is the sorrow can be stopped, that is duk nirodha. Fourth is the path leading to cessation of the sorrow, that is Ashtangic Marga. So these are the four noble truths that you have to remember related to Buddhism. First is the dukkha, then after the duk samudaya, then after the duk nirodha. Then the fourth is the Ashtangic Marg. So this type of questions can be asked, such as the अष्टांगिक मार्ग इज द पार्ट ऑफ बुद्धास थ्री, लाइक एन ऑप्शन आ सकता है थ्री ज्वेल्स, फोर नोबल ट्रूथ्स, फाइव प्रिंसिपल्स, और है ना एट फोल्ड पाथ. सो यू हैव टू चूज आउट ऑफ दैट. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फ्रॉम द perspective of your exam. Okay. So next is the five principles that are given by Buddhism. First is abstain from killing. Okay. Second is the abstain from stealing. Third is the abstain from sexual misconduct. Fourth is the abstain from wrong speech. Fifth is abstain from the use of intoxicating substances that cause inattention. Okay. So these are the five principles that are given by Buddhism. Next is the eightfold path that are given by the Buddhism. First उनमें से है right observation, second is the right determination, third is the right speech, fourth is for the right action, fifth is the right livelihood, sixth is the right exercise, seventh is the right memory, and eighth is a meditation. So you have to remember all these things that are very very important from your exam perspective. You will find directly uh, two to three questions from Buddhism or Jainism only in your upcoming examination. Okay. So please don't miss it. You will get this PDF in our Telegram channel. The link of this Telegram channel is given in description box. You can refer that. Okay. नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट सम्स ऑफ द बोधिसत्वास. बोधिसत्वा में पहला हो गया वज्रपाणी. वज्रपाणी किनको बोलते थे, मतलब कि क्या था? होल्ड सो ए थंडर बोल्ट, है ना, सिमिलर टू लॉर्ड इंद्रा, है ना. बोधिसत्वास थे, है ना. वो वज्रपाणी क्या था? होल्ड करता था एक थंडर बोल्ट को. ओके. देन आफ्टर द लोकितेश्वरा इज ऑल्सो नोन एज पद्म पाणी, दैट इज द लोटस बियरर. ओके. फिर आ गया मंजूश्री इज ए द बुद्धा ऑफ विजडम, वेल्डिंग ए फ्लेमिंग स्वॉर्ड ऑफ टू कट इग्नोरेंस एंड होल्ड ए स्क्रिप्चर. ओके. सिंबलाइजिंग
transcendent knowledge. Fourth is the Maitreya. Maitreya is considered as a future Buddha. Fifth is the Kshitigra, that is the guardian of uh, purgatories. Okay. Fifth is the Amitabha और अमित्यासु, ये बेसिकली बुद्धा ऑफ हेवन है ना. देन आफ्टर लेट्स डिस्कस अबाउट द सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म. सो बुद्धिज्म के सेक्ट्स है, पहला हो गया हीनयान बुद्धिज्म, फिर हो गया महायान, फिर हो गया वज्रयान बुद्धिज्म. ओके. सो फर्स्ट हीनयान, दैट इज ऑल्सो known as the lesser vehicle. Okay. Believe in the original teachings of Buddha, individual salvation through self discipline and meditation. फेवर्ड करता है पाली लैंग्वेज को. देन आफ्टर ऑल्सो नोन एज द सदर्न बुद्धिज्म रिलीजन. टू सबसेक्ट इनके वे थे, विभेसिका एंड स्वतंत्रिका, इसके थे हीनयान बुद्धिज्म के. सो इसमें क्या था, ये लेसर विकल था, बिलीव करता था ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा पे, इंडिविजुअल साल्वेशन पे फोकस करता था. फिर हो गया पाली लैंग्वेज इसकी फेवर करता था. फिर इसको है ना साउथ सदर्न बुद्धिज रिलीजन भी नाम से जाना जाता है. फिर हो गया विभेसिका और स्वतंत्रिका, इसके टू सबसेट से है ना. फिर हो गया महायान बुद्धिज्म के बारे में देखते हैं. बिलीव करता है इन हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा, साल्वेशन थ्रू ग्रेस एंड हेल्प ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वा. फिर हो गया बिलीव इन आइडल वर्शिप, फेवर्ड संस्कृत लैंग्वेज, वहाँ पे पाली लैंग्वेज को करते थे. हीनयान बुद्धिज्म ये संस्कृत लैंग्वेज को फेवर करते हैं. ऑल्सो नोन एज नदन बुद्धिज्म, उनको सदर्न बुद्धिज्म बोलते थे. इसके टू सबसेक्ट थे, मध्यमिका और सुनियावाड़ा. दैट फाउंडर तो इनके है ना नागार्जुना थे. फिर हो गया योगाचार और विनयवादा, दैट इनके फाउंडर हो गए मैत्रेयनाथ. ओके. थर्ड इज द वज्रयान बुद्धिज्म का है ना चीफ डिवाइनिटीज कौन थे द ताराज. ओके. साल्वेशन टू बी अटेंडेड बाय द मैजिकल पावर्स. साल्वेशन बेसिकली ये तंत्र मंत्र से रिलेटेड. ओके. सो नेक्स्ट इज द पॉपुलर इन द ईस्टर्न इंडिया, बेसिकली ईस्टर्न इंडिया में पॉपुलर था, पर्टिकुलरली इन द बंगाल. ओके. So that is about the Buddhism, the Yin Buddhism, Mahayan Buddhism, and the Vajrayana Buddhism. Next is the important terms and their descriptions. Okay, so terms is the Supta Pitaka. Supta Pitaka बेसिकली एक कंपाइलेशन है जिसमें बुद्धा की जो सेइंग्स थी उसको कंपाइल किया गया था. फिर विनय पिताका थी जिसको जो मोनेस्टिक कोड्स थे उससे रिलेटेड थी, है ना. फिर हो गया अधम पिताका, है ना, अभिधम पिताका इज बेसिकली रिलीजियस डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा थी. फिर हो गया मिलिंद पंहो, ये डायलॉग था मिनेंदर इंडो ग्रीक रूलर था, और नागसेना जो कि बुद्धिस्ट सेंट था, है ना. इनके बीच में एक है ना डायलॉग हुआ था जिसके बारे में मिलित पन्हो में लिखा गया है. बेसिकली इसमें मिनांदर थे, उन्होंने इसके बाद में बुद्धिज्म को अडोप्ट किया था. ओके. So this was a debate between the Menander and Nagasena. फिर हो गया दीप वंशा एंड महावंशा. सो बेसिकली दीप वंशा और महावंशा है क्रोनिकल्स ऑफ श्रीलंका है ना. फिर हो गया अनीचा, दैट इज इम्परमिनेंस, है ना. फिर हो गया सरमना इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस. सरमना आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं. द मोंक ऑफ द बुद्धिज्म हु एक्टेड as a torch bearer of the Dhamma. These were ascetics who lived a severe and self-denying lifestyle in order to achieve spiritual emancipation. So they are called sarmanas. Okay. फिर हो गया महाविनिष्कर्मणा is basically great renunciations था, है ना. So basically great renunciation basically the term is coming when the Buddha, that is the Siddhartha, lived his kingdom and went on the path of the Buddhism. Okay. And Bodhi ना attainment. Okay. फिर हो गया महापरिनिर्वाणा डेट ऑफ इनलाइटेंड वंस. ओके. इनको महापरिनिर्वाण बोलते थे. फिर हो गया पतिच्चा समुपादा बेसिकली द लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन था. फिर होगा योगाचारा इज बेसिकली विच गिव द सुप्रीम इम्पोर्टेंस टू मेडिटेशन एंड योगा. ओके.
So next is the Chintamani. Chintamani is a jewel capable of doing miracles in the form of granting wishes, but is generally related to granting of a spiritual fulfillment, usually by अवलोकितेश्वरा. ओके, फिर हो गया शून्यता. शून्यता इज बेसिकली बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन एसोसिएटेड है मध्यमिक असेट से, विच मीन्स अपीयरेंस ऑफ मिसलीडिंग. फिर नेक्स्ट इज द उपोसाता. उपोसाता बेसिकली क्या है, द सेरेमनी ऑफ द न्यू मून एंड फुल मून. ओके, उनको उपोसाता बोलते थे. फिर हो जाएगा तत्घाटा. तत्घाट बेसिकली द लिबरेटेड वन, the one who is free from cycle of death and birth. Okay, that is the tathagata. That is quite important from your examination, please remember this. Okay, next is the patimokkha. Patimokkha is the rules to be followed by the monks, उनको बोलते थे patimokkha. फिर हो गया उपासम्पादा. उपासम्पादा is the basically the original ceremony, ordinary ceremony which when the a novice become a full-fledged king monk. That is the samda. Okay, उपासका बेसिक. नेक्स्ट इज उपासका, जो कि है ना वसीपस थे बुद्धिज्म के. ओके, फिर हो गया प्रावर्जिया. प्रावर्जिया इज बेसिकली सेरेमनी फॉर अ पर्सन गोइंग होमलेस इन और टू सर्च फॉर द विजडम और नॉलेज, जिसको बोलते थे प्रावर्जिया, प्रीवर्जिका से रिलेटेड. ओके, next is the parvarna is the confession of wrong deeds by the buddhist monks, इनको parvarna बोलते थे. फिर हो गया विशुद्धि मगा basically treaty written by बुद्ध गोसा which defines path of purification, उसको बोलते थे विशुद्धि मगा. फिर हो गया Nigranta is basically one who free from all the bonds. That is called Nigranta. Stupa is basically structures contain relics of the Buddha. उनको स्तूपा बोलते थे. स्तूपा इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, आपने सुना होगा सांची स्तूपा, है ना. दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू बुद्धिज्म. ओके, नेक्स्ट इज द जैनिज्म. बुद्धिज्म और जैनिज्म, यू मे फाइंड देर आर 2 to 3 डायरेक्ट क्वेश्चंस in your examination from the Buddhism and Jainism. Okay, so Buddhism की basically doctrines क्या थी, त्रिरत्ना, that is the three jewels of Jainism कौन कौन से थे, साम्यक श्रद्धा और साम्यक विश्वास, right faith, साम्यक ज्ञाना that is right knowledge, साम्यक कर्मा that is the right conduct or right action. Okay, फिर हो गया 5 vows of Jainism that are the पंच महाव्रतास. पंच महाव्रतास कौन कौन से थे, अहिंसा, दैट इज द नॉन इंजरी. फिर हो गया सत्य, दैट इज नॉन लाइंग. देन आफ्टर द असत्य, नॉन स्टीलिंग. देन पारिग्रह इज दैट द नॉन पोजेशन. फिर हो गया ब्रह्मचार्य इज द चेस्टिसिटी, जो कि महावीरा ने ऐड किया था. पहले 4 थे, देन आफ्टर द महावीरा एडेड द चेस्टिटी और ब्रह्मचार्य. ओके, in 5 vows. Next is the principle of Jainism. So basically principles are that they reject the authority of Veda and Vedic rituals. Okay, and did not believe in the existence of God, है ना. God की existence पे believe नहीं करते थे. They believe in karma and transmigration of soul. Okay, empathy on equality. Okay, emphasize on equality. So that are the principle of Jainism. Then next is the philosophy. फिर हो गया philosophy of Jainism, that is the अनेकातवाद. अनेकातवाद is the theory of अनेकातवाद is the theory of plurality and multi-sidedness. Okay, possibilities of 7 modes of prediction or सप्तभागी नयवाद. Okay, so that is the philosophy of the Jainism, that is the अनेकातवाद. Okay, sects, let's move toward the sect of the Buddhism, Jainism. So Jainism के sects कौन से थे, श्वेतांबर is the name suggest, श्वेत यानी white, अंबर यानी कि clad or cloth. So basically white clad, those who wears the white clad, they are called the Shvetambars. Basically stay back during famine in Magda in 298 BC, led by the स्थूलभद्र. ओके, फिर हो गया दिगंबर, दैट इज द स्काई क्लेड. दिग यानी हो गया स्काई, अंबर यानी क्लोथ हो गया और क्लेड हो गया.
So that is the Digambar. They basically went to Deccan and South India, practiced completely nudity, led by the Bhadrabahu, along with the Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya ये है ना श्रवण बेलगोला ने आपने नाम सुना होगा ना, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखना सलेखना ये बेसिकली जैनिज्म में प्रैक्टिस होती है, जिसमें कि आप सब कुछ छोड़ के मतलब कि जो बोलते हैं समाधि में, उस कंडीशन में चले जाते हो एंड यू like है ना, you leave your body, your soul will leave your body, okay, that is the salekna, okay. Okay, fast unto the death, that is you can say salekna, okay. फिर हो गया Yapania is basically no, now existent. Some believe that it acted as the bridge between the Svetambra and Digambra, but it's not very very important. You have to remember Digambar से रिलेटेड कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, प्लस इसमें भद्रबाहु था, ये दक्कन की तरफ गए थे, साउथ इंडिया में गए थे। वहीं श्वेतांबर्स थे, उन्होंने फेमाइन में मगध में ही रुके थे, उसको लीड किया था किसने, ये स्थूलभद्र ने, ओके। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द जैनिज्म। सो जैनिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी है, अनुवर्ताज। अनुवर्ताज आर द लेसर वोव्स इन द जैनिज्म डिजाइंड फॉर द ले फॉलोवर्स, सर्वकाज और सर्विकास who seek to live a morally disciplined life while remaining in the society, that as the anuvartas, okay. नेक्स्ट इज द अरिहंत। अरिहंत आपको भी पता है, अरिहंत इज ए पब्लिकेशन और ए बुक पब्लिकेशन, सो ऐसे ही नाम नहीं रखते ना बुक्स का, सो दे हैव सम मीनिंग। सो हियर यू कैन रिमेंबर द अरिहंत इज बेसिकली ब्लेस्ड वन, ओके। फिर हो गया अवधि ज्ञाना। अवधि ज्ञाना इज बेसिकली clairvoyant perception थे, okay. Then after the Jena is one who conquered his senses, that is the Jena। फिर हो गया केवल्य ज्ञाना means omniscience in the Jainism, okay। then is that is the केवल्य। फिर हो गया केवालिन is perfectly learned, okay, that is the केवालिन। फिर हो गया महावीरा, द ब्रेव, ओके। फिर हो गया महावर्ता। महावर्ता इज द 5 सुप्रीम ethical vows observed by the Jain monks and nuns. These vows are absolute, strict, and far more rigorous than Anuvartas. Less vow of lay people. They form the foundation of ascetic life in Jainism and are essential for achieving liberation, that is the moksha, that is called the Mahavartas। फिर हो गया मति ज्ञाना। मति ज्ञाना इज बेसिकली परसेप्शंस थ्रू एक्टिविटीज ऑफ सेंस ऑर्गन्स, ओके, दैट इज द मति ज्ञाना, ओके। फिर हो गया निग्रांताज। निग्रांता इज बेसिकली फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्ड्स, दैट इज द निग्रांता, ओके। फिर हो गया श्रुत ज्ञाना। श्रुत ज्ञाना बेसिकली नॉलेज रिवील्ड बाय स्क्रिप्चर्स। फिर हो गया असराव। असराव इज द फ्लो ऑफ कर्मा, कर्मा पार्टिकल्स टुवर्ड्स द जीवा। फिर हो गया सिद्धलोका, बेसिकली द फाइनल अबोर्ड ऑफ द लिबरेटेड सोल। फिर हो गया गुणस्थान। गुणास्थान बेसिकली 14 stages of purification। नेक्स्ट इज द समावरा। समावरा इज बेसिकली स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ कर्मा। फिर होगा निर्जरा। निर्जरा इज बेसिकली वियरिंग आउट द accumulated of karma। फिर हो गया मोहिनिया कर्मा। मोहिनिया कर्मा इज बेसिकली डिल्यूशन क्रिएटिंग कर्मा। फिर हो गया सार्वक प्रातिमा। सो बेसिकली सार्वक प्रातिमा इज बेसिकली स्टेप्स बाय whom a lay flower may achieve a renunciation। flower not follower, okay, follower, okay। Then after the Privarjaka is the wandering mendicant, often associated with the early Buddhist Jainism tradition. They renounce worldly life, that is the Privarjaka, okay। नेक्स्ट इज द मौर्यन एम्पायर। वी आर इन द मौर्यन एम्पायर। सो इसमें देखते हैं विलेज लेवल ऑफिसर्स के बारे में देखते हैं। दैट इज द ग्रामिका। ग्रामिका इज द बेसिकली ग्राम का इका, दैट इज द हेड ऑफ द विलेज एंड ही कुड बी एन इलेक्टेड और हेरिडेटरी पोजिशन।
Gramika is maybe the elected, or maybe he is in a hereditary position. Okay, he is on the hereditary position. Okay, then after the Gram Vridas, basically Gram Vridas ho gaye. The panchayat consists of village elders to settle this. Vridas basically old people. So Gram related to Gaon, matlab village. So people for the elder peoples from the village. So elder peoples क्या करेंगे, वो dispute को resolve करेंगे. So that is about that is why it is called the Gram Vridas. ग्रामिका कौन हो गया, ग्राम इका, that is the one who heads the village. Okay, नेक्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स. एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स हो गए प्राशास्त्री. प्राशास्त्री इज द पर्स प्रिजन हेड. ओके, देन आफ्टर हो गया सानीदाता. सानीदाता इज द ट्रेजरी हेड. रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर देम. ओके, कोसा कोषाध्यक्ष. कोषाध्यक्ष हो गया ट्रेजरी ऑफिसर. सो कोसा इज बेसिकली ट्रेजरी, अध्यक्ष यानी अधिकारी, दैट इज द ऑफिसर. ओके, फिर हो गया कोसा कोष्ठा कोस्टागारा देक्सा. बेसिकली कोस्टागारा देक्सा कौन सा हो गया, जो रॉयल ट्रेजर का मैनेजर था, मैनेजर है उसको रॉयल मतलब कि कोस्टा दिकारा देक्सा बोलते हैं. ओके, फिर हो गया नायका. नायका इज द सिटी सिक्योरिटी चीफ, दैट इज कॉल्ड नायका. ओके, फिर हो गया व्याभारिका. व्यापारिका इज बेसिकली व्यापारिका इज बेसिकली द चीफ जजेस. ओके, फिर हो गया कर्मंटिका. कर्मंटिका इज द हेड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज. फिर हो गया दंडपाला. दंडपाला इज बेसिकली हेड ऑफ द पुलिस. दंडा इज रिलेटेड टू पनिशमेंट, पाला इज वन हु प्रोटेक्ट, दैट इज द हेड ऑफ द स्टेट, सॉरी हेड ऑफ द पुलिस इज कॉल्ड दंडपाला. ओके, फिर हो गया दुर्गपाला, द हेड ऑफ द रॉयल फोर्ट. सो द हेड ऑफ द रॉयल फोर्ट इज द दुर्गपाला, है ना. फिर हो गया तीर्थास. तीर्था हो गया सीनियर ऑफिशियल. फिर हो गया सीता देक्षा. सीता देक्षा इज बेसिकली सुपीरियर सुपरवाइजर ऑफ द एग्रीकल्चर, दैट इज कॉल्ड एज द सीता देक्षा. फिर हो गया पान्या देक्षा. पान्या देक्षा इज द बेसिकली न सुप्रिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स. फिर हो गया युक्ता. युक्ता इज द सबॉर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर, इज कॉल्ड द युक्ता. ओके, हो गया प्रासादेका. प्रासादेशिका. Prasadesika is the basically is the chief revenue officer. He is called the Pradesika. Okay, Pradesika. That is the Pradesika is the revenue chief revenue officer, है ना. चीफ रेवेन्यू ऑफिसर को मौर्यन एम्पायर में क्या बोलते थे, प्रादेशिका बोलते थे. ओके, स्तनिका. नेक्स्ट इज द स्तनिका, दैट इज द हेड ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव. फिर हो गया रजुका. रजुका इज बेसिकली रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर. ओके, फिर हो गया सस्ता देक्षा. सस्ता देक्षा संस्था देक्षा. संस्था देक्षा इज बेसिकली सुप्रिटेंडेंट ऑफ मार्केट. ओके, फिर हो गया पोथा विदेक्षा. पोथा विदेक्षा पोथा विदेक्षा बेसिकली सुप्रिटेंडेंट ऑफ वेट एंड मेजर्स. ओके, फिर हो गया नव्य देक्षा. नव्य देक्षा इज बेसिकली सुप्रिटेंडेंट ऑफ शिप्स. ओके, फिर हो गया सुलेख देक्षा. सुलेख बेसिकली रिलेटेड टू द टैक्स और टोल, दैट इज सुलेख देक्षा इज बेसिकली कलेक्टर ऑफ द टोल, है ना. फिर हो गया मुद्रा देक्षा. मुद्रा इज बेसिकली द करेंसी और द कॉइन्स, बेसिकली इट इज द रॉयल सिंबल ऑफ द सिंबल ए कॉइन. फिर हो गया द्युता देक्षा. द्युता देक्षा इज बेसिकली गैम्बलिंग डिपार्टमेंट. ओके, नेक्स्ट इज द नोखा देक्षा. नोका देक्षा इज बेसिकली शिपिंग ऑफिसर. ओके, फिर हो गया पठान देक्षा. पठान देक्षा इज बेसिकली द ऑफिसर ऑफ द पोर्ट. ओके, सो दैट इज लेट डिस्कस some more administrative terms, that is the annapala. Anna is related to the grains, so basically annapala is basically one who heads the food grain department. Okay, नेक्स्ट इज द रजुकाज. रजुकाज इज द लैंड मेजरर. ओके, फिर हो गया अकाराध्यक्षा. अकाराध्यक्षा इज बेसिकली माइनिंग ऑफिसर. फिर हो गया लोहाती देक्षा. लोहाती देक्षा इज बेसिकली मेटलर्जी ऑफिसर. फिर हो गया लक्ष्य देक्षा. लक्ष्य देक्षा इज द कॉइन मिंटिंग. ओके, ऑफिसर. फिर हो गया लवण देक्षा. लवण इज बेसिकली सोल्ट, so it is related to the officer of the salt department.
फिर हो गया स्वर्ण देक्षा, इज बेसिकली स्वर्ण इज रिलेटेड टू गोल्ड, सो इट इज द ऑफिसर ऑफ द गोल्ड डिपार्टमेंट। फिर हो गया आयुधेक्षा, आयुधेक्षा इज द आयुधा देक्षा, बेसिकली वेपन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफेंस से रिलेटेड है। फिर हो गया कुनाध्यक्षा, कुनाध्यक्षा सॉरी कुन्याध्यक्षा इज बेसिकली ऑफिसर ऑफ द फॉरेस्ट। फिर हो गया मांडाध्यक्षा, बेसिकली द रेगुलेशन ऑफ मेजर्स एंड वेट्स। फिर हो गया सुन्याध्यक्षा, सुन्याध्यक्षा इज बेसिकली स्लोटर हाउस ऑफिसर। फिर हो गया धम्मा, धम्मा इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी। फिर हो गया धम्म महामात्रा, द ऑफिसर हु फॉर प्रमोशन ऑफ द धम्मा, धम्मा के प्रमोशन के लिए धम्म मात्रा महामात्रा अपॉइंट किए जाते थे। ओके, miscellaneous terms that you have to require that remember from the Mauryan age, okay, that is the Vis or Ahara, basically Ahara district were the unit of the provinces, okay, so Vispati you have to remember, okay। फिर हो गया मंत्री, मंत्री इज द चीफ मिनिस्टर। और फिर हो गया मंत्री परिषद अध्यक्षा, मंत्री परिषद अध्यक्षा इज बेसिकली हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओके। नेक्स्ट इज द पुरोहिता, पुरोहिता बेसिकली द चीफ प्रीस्ट को बोलते थे पुरोहिता। सेनापति कमांडर इन चीफ हो गया, युवराज द क्राउन प्रिंस हो गया। समहर्ता इज बेसिकली रेवेन्यू कलेक्टर, जो कि आपको रिमेंबर करना है, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। फिर हो गया सुलेख देक्षा, सुलेख देक्षा इज बेसिकली ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रॉयल इनकम, ओके। फिर हो गया गोद पुरुषास, बेसिकली स्पाइसेस हो गया, गोद पुरुषास इंपॉर्टेंट, ओके। फिर हो गया प्रतिवेदिकास, प्रतिवेदिकास बेसिकली इन्फॉर्मर हो गया। देन आफ्टर ग्रामिका, द इलेक्टेड ऑफ द विलेजेस हेड, है ना, हमने पढ़ा है ना ग्रामिका, ओके। नेक्स्ट इज द ग्राम वृदास, ग्राम वृदास द पंचायत ऑफ द विलेज एल्डर्स हो गया। फिर हो गया कर्मकारास, हायर्ड लेबर। विस्टी हो गया फोर्स लेबर, इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फिर हो गया श्रेणीज, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। कोल्ड एज निगमास, निगमा भी पूछा गया है। एंड और गिल्ड्स वर इकोनॉमिक एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स, artisans and traders. They played a crucial role in trade, banking or even administrative function, okay। नेक्स्ट इज द पोस्ट मोरियन पीरियड, पोस्ट मोरियन पीरियड के एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स देखते हैं, ओके ओके। सो लेट्स मूव टुवर्ड द पोस्ट मोरियन पीरियड। सो बेसिकली यहाँ पे हारा, जैसे कि हमने अभी मोरियन पीरियड में भी पढ़ा था, बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस है एंशिएंट टाइम का। फिर हो गया अमात्य, अमात्य इज बेसिकली मिनिस्टर्स हु समटाइम्स ऑल्सो एक्ट एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ हारा और प्रोविंसेस। फिर हो गया देवपुत्रा, basically a title adopted by the Kusana rulers of ancient India, which signifies their divine origin, okay। Divine origin, basically people try to, the kings try to be show their divine origin, express their divine origin, so that people and their subjects can worship him or can adhere to his rules, okay। So next is the Devakula, Devakula is basically the temple dedicated to the dead monarch of the ancient इंडिया, ओके। नेक्स्ट इज द काठिया दापा माना मादा, बेसिकली ये टाइटल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना अजीब टाइटल दिख रहा है इंपॉर्टेंट भी उतना ही है। द टाइटल एडोप्टेड बाय द गौतमीपुत्र सातकर्णी, द रूलर ऑफ द सातवाना डायनेस्टी, विच मीन्स द वन हु डिस्ट्रॉयड ऑल क्षत्रियाज, क्षत्रिय दापा माना पादा, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सो गौतमीपुत्र सातवा इस सात, गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र बेसिकली मदर से रिलेटेड नाम, मतलब कि नाम है। सो बेसिकली वी कैन से द सातवाना डायनेस्टी थी, उसमें मतलब कि वीमेन की पोजीशन काफ़ी अच्छी थी, वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस, ओके। नेक्स्ट इज द श्रेणी बाला, श्रेणी बाला इज द वॉरियर गिल्ड इन द एंसेंट टाइम, ओके। फिर हो गया उपारा क्षिता, बेसिकली इंडिविजुअल और ग्रुप हु बिल्ड caves for monks in the ancient time, okay। next is the economic terms। फिर हो गया चाटू, चाटू इज बेसिकली द caravan of traders who traded goods to in ancient India। फिर हो गया डेनारी, डेनारी इज बेसिकली रोमन coin issued in the
दिनारी, दिनारी इज बेसिक, दिनारी और डेनारी कुछ भी बोलो, रोमन कॉइन है इशूड इन द गोल्ड फॉर्म, ओके। फिर हो गया गंदिकाज, गंदिकाज ऐसी बेसिकली परफ्यूम सेलर्स थे एंसेंट इंडिया के, जिससे ही अभी करंट में जो गांधी ना सरनेम है वो गंदिकाज से, गंदिकाज से ही ओरिजिनेट है, ओके। नेक्स्ट इज द खारासपाना, खारासपाना इज बेसिकली द कॉपर कॉइन यूज्ड इन द एंसेंट टाइम, उनको खरासपाना बोलते थे। फिर हो गया महाभोजा, महाभोजा इज द फ्यूडिटरी ऑफ द सातवाना हु सर्व्ड एज द ऑफिशियल्स अंडर द अमात्याज, ओके। नेक्स्ट इज द पंचनिकामे, पंचनिकामे इज बेसिकली द कॉइन issued by 5 guilds in ancient India, okay. Next is the Purana. Purana is the silver coin used during the Kusana period in the ancient India. फिर हो गया स्त्रीधना, द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन इन एंसेंट इंडिया, ओके। फिर हो गया स्वर्ण दीपा, स्वर्ण दीपा इज द रीजन इन द साउथ ईस्ट एशिया विच वॉज नोन फॉर इट्स गोल्ड प्रोडक्शन इन एंसेंट टाइम्स, ओके। नेक्स्ट इज the Valakikars. Valakikars is basically the troops who serve the king and the state in the ancient Tamil Nadu, okay. Next is the Vrata Kshatriya. Vrata Kshatriyas who have come from the outside and assimilated into Indian society, okay. उनको बोलते थे व्रता क्षत्रिय, ओके। फिर हो गया योध्या, योध्या इज बेसिकली द रिपब्लिक अराउंड ईस्टर्न पंजाब इन द एंसेंट इंडिया, उसको योध्या बोलते थे, ओके। नेक्स्ट इज द गोलमिका, गोलमिका इज बेसिकली द विलेज एडमिनिस्ट्रेटर इन द इंडिया, ओके। ग्रामिका बोलते थे, ग्राम आपने मतलब कि ये मौर्यन टाइम पे ग्रामिका बोलते थे हेड ऑफ द विलेज को, और ना ग्राम वृद्धिकाज बेसिकली जो एल्डर्स की ना असेंबली थी उनको बोलते थे। There are some miscellaneous terms that you have to also remember for your examination. That is the Gata Stai. Gata Stai is basically the grace treaty of rural love written in Prakart by the Satvana ruler in ancient India. Okay. फिर हो गया रत्ना दीपा, रत्ना दीपा is basically an island nation located in the Indian Ocean which is identified with the modern day Sri Lanka. Okay. नेक्स्ट इज द मगधाज, मगधा इज बेसिकली एक कम्युनिटी है जो कि डिस्टिंक्ट है मगध रीजन से, रेफर टू ए क्लास ऑफ प्रोफेशनल बार्ड एंड क्रोनिकल्स एंड पेनेग्रिसिस इन द एंसेंट इंडिया। मगधाज इज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके, सो रिमेंबर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। नेक्स्ट इज द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, द संगम डायनेस्टीज हो गई है ना, उनके बारे में पढ़ लेते हैं ना, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स। सो पहला हो गया अरासर, अरासर इज द बेसिकली द रूलिंग क्लास। फिर हो गया खो, खो इज बेसिकली द किंग। फिर हो गया कौनमई कौंदन, कौनमई कौंदन इज द किंग ऑफ द किंग्स। फिर हो गया ब्रह्मदेया इज द लैंड गिवन टू द लैंड गिफ्ट गिवन टू द ब्राह्मणाज। फिर हो गया गोवदा, गोवदा इज द विलेज एडमिन, गोवदा यानी गांव से रिलेटेड, ओके, विलेज से रिलेटेड। हेगेड, हेगेड इज बेसिकली द रेवेन्यू ऑफिशियल। फिर हो गया नगर कानी, नगर कानी इज बेसिकली अर्बन रेवेन्यू यूनिट, ओके। नेक्स्ट इज द नाटुकुल, नाटुकुल इज बेसिकली ए मेमोरियल celebrating the death of a brave fighter in the war. Next is the Nadu, Nadu is the locally consisting of several settlements, उनको नाडू बोलते थे। सो टुडे इन contemporary times we can call is the तमिलनाडु, मतलब कि तमिलनाडु बोलते हैं ना, वैसे ही नाडू बोलते थे, ओके। फिर हो गया नाटा, नाटा इज द गवर्निंग असेंबली ऑफ नाटू, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट इज द सभा, सभा इज बेसिकली असेंबली ऑफ द ब्राह्मणाज इन ब्रह्मदेवा विलेजेस, ओके। फिर हो गया तानियूर, तानियूर इज द ब्रह्मदेया अंडर द नाडू बट फ्री फ्रॉम इट्स jurisdiction. It was a semi-autonomous for specialized administrative division, okay. फिर हो गया वटा किरुटुल, वटा किरुटुल इज बेसिकली रिचुअल सुसाइड ऑफ द डिफीटिंग किंग, उसको वटा किरुटुल बोलते थे, उसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ओके। सो फ्रेंड्स प्लीज रिमेंबर दिस, ओके। फिर हो गया वेलीर, वेलीर हो गया द चीफ। फिर हो गया
कालांजू इज द गोल्ड कॉइन ऑफ द चोलास। फिर हो गया कराई, कराई इज द लैंड टैक्स। फिर हो गया कानाथिकान, कानाथिकान इज द चीफ ऑफ स्क्राइब्स। फिर हो गया उल्गू, उल्गू इज बेसिकली द कस्टम ड्यूटी। वेसियार हो गया ट्रेडर्स। फिर हो गया वारियाम इज द यूनिट ऑफ टेरिटरी यील्डिंग टैक्स। फिर हो गया वारियार हो गया टैक्स कलेक्टर। फिर हो गया मुल्लाई हो गया पास्चोरल ट्रैक्ट हो गया। फिर हो गया मरुथम इज बेसिकली वेटलैंड हो गया। पलाई इज डेजर्ट हो गया। वेलार इज द रिच पीजेंट, उसको पहले वेलार बोलते थे। ओके, नेक्स्ट इज द मिसलेनियस टर्म्स, दैट इज द अकाम, अकाम इज द लव पोइम। ओके, then after the khudi niki is the एक situation in which previous settled in the village were removed। ओके, उसको खुदी निकी बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हो गया खुदी निंगा इज इट मीन्स दैट प्रीवियस सेल्टर्स शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। ओके, उसको खुदी निगा बोलते थे। देन आफ्टर द वेंडार, वेंडार इज बेसिकली क्राउन किंग को वेंडार बोलते थे। फिर हो गया Irviria. Irviria is the committee constituted for the maintenance of tanks developed for irrigation। ओके, उसको बोलते थे इरीविरा, इरविरिया। ओके, फिर हो गया अमाची चार इज बेसिकली मिनिस्टर। फिर हो गया पुरोहिता प्रिस्ट हो गया। दूतार इज द दूत हो गया, उसको एनवॉय बोलते थे। सेनापति कमांडर हो गया। और आर बेसिकली स्पाइसेस हो गया। फिर इकोनॉमिक टर्म्स दैट आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द संगम लिटरेचर। फिर हो गया इराऊ, इराऊ इज द फोर्स गिफ्ट। ओके, फिर हो गया इराई, इराई इज बेसिकली ट्रिब्यूट पेड बाय द फ्यूडिटरीज एंड बूटी कलेक्टेड इन द वॉर, उसको इराई बोलते थे। कुंजी हो गया माउंटेन रीजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। फिर हो गया कुटिल, सॉरी कुटी, कुटी इज द क्लेन बेस्ड डिसेंट ग्रुप ऑफ संगम सोसाइटी। फिर हो गया नेतल, नेतल इज द कोस्टल योर आइलोट्रल। ओके, फिर हो गया सॉरी लिटोरल। ओके, पूरम हो गया द पोएम डिफाइनिंग वॉर। फिर हो गया मियाटाची, मियाटाची इज द सुपीरियर राइट ऑफ दोनीस। फिर हो गया काला टीका, काला टीका इज द सुपरिटेंडेंस ऑफ पर्ल्स। फिर हो गया कर्ण, किलमई इज द सबॉर्डिनेट राइट ऑफ कल्टिवेटर्स। अरगाटा इज बेसिकली पर्सियन व्हील। प्लीज रिमेंबर दिस, ये आपके PYQ में आ चुका है ना, PYQ का पार्ट है। ओके, so this can be asked in your upcoming examination। okay, next is the Gupta age। so Gupta age में we will do Gupta age। okay, we will do the Gupta age and we will then after stop। so the important terms from the Gupta age, the important officials, first we will discuss the important official, then we will discuss about the administrative unit, then the taxations related terms। okay, so important officials is the Kumar Amatyas। Kumar Amatya is basically he was a body of top ranking officials attached to not only to the king but also to the crown prince and sometimes placed as in charge of the district, उसको कुमार मात्या बोलते थे। फिर हो गया संधि विग्रह, विग्रहिका इज बेसिकली मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, दैट इज द मॉडर्न फॉरेन मिनिस्टर, उसको बोलते थे संधि विग्रहिका, जो कि संधि करता है। ओके, उसको संधि विग्रहिका बोलते थे। सो मॉडर्न डे ये काम फॉरेन मिनिस्टर करता है। ओके, फिर हो गया महाप्रतिहार्या, बेसिकली द चीफ उसर ऑफ रॉयल पैलेस। ओके, फिर हो गया दंड पक्षिका, पासिका इज बेसिकली द चीफ ऑफिसर ऑफ द रॉयल डिपार्टमेंट। फिर हो गया विनय स्थिति स्थापक, विनय स्थिति स्थापक इज द चीफ ऑफिसर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। फिर हो गया महापिलुपति, महापिलुपति इज द चीफ ऑफ द एलिफेंट कॉर्प, है ना, कोर, इसको कॉर्पस नहीं बोलते, कॉर्प्स नहीं बोलते, इसको कोर बोलते हैं ना। बेसिकली आर्म्ड कोर इज क्वाइट रिलेटेड। ओके, सो बेसिकली ये चीफ ऑफ द एलिफेंट कोर का कौन था महा पिलुपति। ओके, फिर हो गया महा स्तवापति, ये बेसिकली चीफ ऑफ कैवलरी हो गया। फिर हो गया महा बालाधिकृता, बेसिकली ये कमांडर इन चीफ होता था, उसको बोलते थे। फिर हो गया महादंड नायिका, महादंड नायिका इज बेसिकली दंड नायिका, नायिका यानी कि रूलर एंड दंडा यानी कि जो दंड देता है उसको चीफ जस्टिस बोलते थे। फिर हो गया प्रतिसारा, महाप्रतिसारा इज द मेंटेनेंस ऑफ रॉयल पैलेस, उसको महाप्रतिसारा बोलते थे।
फिर हो गया बांधार ग्रहाधिकृता। बांधार द ग्रहाधिकृता इज द बेसिकली द हेड ऑफ द रॉयल ट्रेजरी। फिर हो गया महापक्षा पाटालिक, बेसिकली द चीफ ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट को महापक्षा पाटालिक बोलते थे। फिर सर्वाध्यक्षा, सर्वाध्यक्षा इंपोर्ट सॉरी इंस्पेक्टर ऑफ ऑल द सेंट्रल डिपार्टमेंट को सर्वाध्यक्षा बोलते थे। फिर हो गया राणा बंधगिरी का। राणा बंधगिरी का इज बेसिकली द ऑफिसर ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द रॉयल स्टोर, उसको बोलते थे राणा बद्री का इज बद्रगृही का। फिर हो गया उपारिका। उपारिका इज बेसिकली द डायरेक्ट अपॉइंटेड बाय द किंग एज द प्रोविंस गवर्नर, उसको उपारिका बोलते थे। सामंता इज द फ्यूडल चीफ्स हो गए, है ना। फिर हो गया पुष्टपाला और कर्णनिका। कर्णनिका और पुष्टपाला बोलते थे रिकॉर्ड कीपर्स को, ओके। फिर हो गया कुलिका। कुलिका इज द चीफ आर्किटेक्चर। फिर हो गया कांचुकी। कांचुकी के चूंकि इज द रॉयल सर्वेंट था विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गार्डिंग इनर क्वार्टर्स इंक्लूडिंग द क्वींस हरम, उसको बोलते थे कांचुकी। फिर हो गया पटालिका। पटालिका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, एग्जाम्स में काफ़ी आ चुका है। इज बेसिकली जनरली आइडेंटिफाइड विद द मॉडर्न पटेल बिलीव टू बी द किंग्स रिप्रेजेंटेटिव इन द विलेजेस को, उसको पटेल बोलते थे, ओके। अभी पटेल बोलते हैं, पहले उसको पटालिका बोलते थे। देन आफ्टर द महात्रा। महात्रा इज द नॉन ऑफिशियल एंड द पॉसिबली ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, उसको महात्रा बोलते थे। बेसिकली नॉन ऑफिशियल था जो कि पीपल्स का रिप्रेजेंटेटिव था, सिटीजन्स का रिप्रेजेंटेटिव था। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला हो गया भुक्ति। भुक्ति इज बेसिकली द प्रोविंशियल रिलेटेड है। विषया, विषया इज द डिस्ट्रिक्ट, विषयपति द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हो गया। आयुक्ता बोलते थे उसको। ग्रामा विलेज हो गया, ग्रामिका हेड ऑफ द विलेज हो गया। कुले यापा, बेसिकली कुले इज बेसिकली द वाटर चैनल ऑफ इरीगेशन और इरीगेशन रिसोर्स। यापा इज बेसिकली सोइंग और कल्टिवेशन। लाइकली रेफर टू द लैंड इरीगेटेड बाई वन वाटर चैनल और स्टैंडर्डाइज यूनिट ऑफ कल्टिवेबल लैंड, उसको बोलते थे कुले यापा, ओके। द्रोण यापा। द्रोण यापा इज डिराइव्ड फ्रॉम द द्रोणा, मीन्स measure of grain roughly 16 to 20 kg plus yapa is basically sowing, that is the possibly mean the land required to sow one drona of seed. So basically ये measurements से related है, okay, both are related to the measurements, they are asked in UPSC exams and I will suggest you that you should double triple star them and revise it more and more times so that in the static part on the facts related part you will definitely not going to lose the marks if you complete these sessions religiously and follow the PDF and revise properly 3 to 4 times, okay. Next is the taxation related to terms. Taxation से related terms थी। पहला हो गया क्षत्रिय। क्षत्रिय इज द फर्टाइल लैंड को बोलते थे। फिर खील हो गया, खील बेसिकली इनफर्टाइल लैंड को बोलते थे। फिर हो गया अप्रहत। अप्रहत इज द फॉरेस्टेड लैंड को बोलते थे। वास्तु इज द हैबिटेबल लैंड को वास्तु बोलते थे। काल्पिता इज बेसिकली द सेल्स टैक्स और परचेज टैक्स, उसको कल्पिता बोलते थे। हलीवाकार और हलीदांता बेसिकली द टैक्स ऑन प्लाविंग बोलते हैं उसको, वो होता था। बलि क्या होता था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में। बलि बेसिकली वॉलेंटियरी होता है in the beginning but later it become an additional oppressive tax on the people. Bali is basically the voluntary offering था, offering to the king, जिसको टैक्सेस के रूप में बोलते हैं, ओके। देन आफ्टर दैट प्रत्यय is basically the toll tax. Bhaga is basically the division or the part is tax levied on agriculture produce, typically 1/6 of the yield and served as the primary source of the revenue for the state, उसको भागा बोलते हैं। फिर हो गया भोगा। भोगा is the general tribute. The tax is the kind of gift, flowers, woods and fruit etc, उसको भोगा बोलते हैं। फिर हो गया भाटा। भाटा इज द पुलिस टैक्स, है ना। फिर हो गया चार्ट। चार्ट इज बेसिकली सिक्योरिटी टैक्स हो गया। फिर हो गया चारासना। चारासना इज बेसिकली ग्रेजिंग टेस्ट हो गया, टैक्स हो गया। फिर हो गया उदका भाग। उदका भाग इज बेसिकली वाटर टैक्स हो गया। फिर हो गया उपारी कार। उपारी कार इज द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट, उसको उपारी कार बोलते थे। देन आफ्टर द
तारा दया इज द टेक्स्ट और नेविगेशन, उसको तारा दया बोलते थे। राजू, राजू इज बेसिकली द टेक्स्ट फॉर मेजरमेंट ऑफ द लैंड, उसको बोलते थे राजू। ओके, सो दैट इज we discussed today, and so we will do the pala और प्रतिहारा also we will do in this. पहला इज द भुक्ति, भुक्ति इज बेसिकली प्रोविंस हो गया, मंडला और विषय इज द डिस्ट्रिक्ट हो गया, उपारिका बेसिकली द गवर्नर ऑफ द भुक्ति हैज़ द ड्यूटी टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, उसको उपारिका बोलते थे। विषयापति हेड ऑफ द विषया, है ना। फिर हो गया पटाला, पटाला इज बेसिकली स्मॉलर यूनिट्स बिलो विशास। फिर हो गया भोगपति, बेसिकली ये स्मॉल चिपसेंट है ना, डोमिनेटेड विलेज को बोलते थे भोगपति। ओके, सो फॉर टुडे this is the more than sufficient lecture. I don't want to extend it more. If you like, if we extend it more, then you will find jetted and burn out while we're going through this lecture. If you follow this 45 minutes religiously, you will definitely feel the confident while you are attempting the previous year paper as well as the upcoming examination. So I suggest you that please follow them regularly and comment down कि आपने इसको किसको कितना बेनिफिट हुआ, प्लस आपको प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे हो उसमें आपको कितने क्वेश्चंस डायरेक्टली मिले इससे, है ना। सो दैट यू हैव टू कमेंट डाउन। ओके, सो फॉर टुडे we will end up the lecture, and tomorrow we will move toward the next set, that will we start with the Gupta age and we will try to reach towards the medieval history, and because medieval history portion is quite important, like वहाँ से एक ना क्वेश्चंस बना वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल होते हैं। सो दैट इज़ फॉर टुडे, गुड बाय, वी विल मीट टुमारो। ओके।